start today's class. Before I start the class, let me ask one question. ठीक है, आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. Suppose your mother gave you 20 rupees, okay, and your father gave you 25 rupees. How many money do you have now? How much money do you have now? आपके पास कितनी मनी होगी टोटल? अगर आपके मम्मा आपको 20 रुपीज देते हैं और आपके फादर आपको 25 रुपीज देते हैं, तो आपके पास टोटल मनी कितनी होगी? ₹45. Many students are writing in the chat box. Yes. So what you did? You added, है ना? आपने 20 में 25 add किए and you got the answer. Okay. And जब हमारे पास रुपीस के साथ पैसे भी हैं, तब हमने उसको कैसे ऐड करना है, ठीक है? दैट विल लर्न इन टुडेज क्लास. आज की क्लास में हम ये लर्न करेंगे कि जब हमारे पास रुपीस भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, तब हम उसको कैसे उसको ऐड करें, ठीक है? Understood? But before that, let's revise previous concept. Write in words and write in figures. तो पहले हम one question write in word और write in figure का करेंगे. उसके बाद हम next concept start करेंगे, addition of money. Okay? So first we'll do write in words and write in figure. One question only, just for your revision. Okay? So first question is write in words. Okay, and the question is rupees 389.50. Now you have to solve it on your notebook. ठीक है जी? You will solve it on your notebook. And the second question is write in figures. Write in figures. Okay? 526 rupees, 526 rupees and 50 paisa. Okay, so you have to change, you have to write in words here, and here you have to write in figures. Okay, so I am giving you time, solve it. Very good. Tanuj has written in the chat box. Good. वेरी गुड. जल्दी से कीजिए, मैं 2 मिनट्स आपको दे रही हूँ. मिनट्स आपको दे रहे हैं. जल्दी से नोट कीजिए एंड राइट योर आंसर. Very good. Bhavesh has written. Very nice. Yes, very good. I have shared the link for the attendance. Okay, fill your attendance. Very nice. Aryan, Ranveer, all have done. Very good. जल्दी जल्दी कर लीजिए ये sum. Then we'll start addition of money. Everyone will fill the attendance. Okay, you can ask your parents to fill the attendance, no problem. अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी आराम से कर सकते हो. चैट बॉक्स में अटेंडेंस आती है, उस पर क्लिक कीजिए. ठीक है,
Yes. हाँ जी. So let's start solving these sums. So first sum is rupees 389.50. That means 50 पैसा. Point के बाद जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो पैसा होता है. Okay? So we write here 389 rupees and 50 paisa. Okay, then we have to convert into figures. Now we have been given 526 rupees and 50 paisa. हमें क्या दिया है? हमें given है 526 rupees and 50 paisa. अब हमने इसको figures में लिखना है. So the first step is we have to write the symbol of it. Okay, don't forget. इसे नहीं लगाओगे तो आपका आंसर इनकरेक्ट है. ठीक है? So 526.50 पैसा, मतलब हमने पॉइंट लगाना है, उसके बाद हमने पैसा लिखना है. क्लियर? हाँ जी, दिलप्रीत, you have raised hand. Do you have any query? Unmute yourself. मैम. हाँ जी बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम ये सारा कुछ आप करा रहे हैं हमको, ये लिखना भी है? हाँ जी, आपको लिखना भी है, तभी बोर्ड पे कर रहे हैं. ठीक है, आप आराम से बैठे हो बेटा. यू आर नॉट राइटिंग एट ऑल. ओके मैम. जल्दी कीजिए. ठीक है. हाँ जी. So those who have done, write yes in the chat box. Done लिख लीजिए chat box में, ताकि मुझे पता चल जाए सबने कर लिया है. Okay, मान्या, unmute yourself. मान्या. हाँ जी. यस मैम. 13. मैम दोबारा बोलना. Table of 13. You have to speak table of 13. 13 zeros are 0, 13 ones are 30, 13 twos are 26, 13 threes are 39, 34s are 52, 35s are 16, 5, 13 6 are 78, 13 7s are 91, 13 8s are 104, 13 9s are 117, 13 10s are 130. गुड बेटा. आप नोटबुक से देख के बोल रहे थे? No ma'am. No. No ma'am. Okay. हाँ जी. So I hope you all have done these two sums. So let's start addition concept. So we will put heading addition. Addition of money. अब आपको स्टेटमेंट गिवन होगी इसमें रुपीज 320 पैसा प्लस रुपीज 218 and 50 paisa. Okay, so now you know that after point there is पैसा. ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या है? वो पैसा है. और पॉइंट से पहले जो नंबर है जिनके आगे रुपीस का सिंबल लिखा है, दैट इज रुपीस.
small p and here you will write symbol of rupees. ठीक है, अब रुपीस के नीचे हमने रुपीस लिखने हैं और पैसे के नीचे हमने पैसा लिखना है. ठीक है, फिर उनको ऐड करेंगे. जैसे यहाँ पे रुपीस 308 है तो रुपीस के नीचे हमने लिख दिया, पहले हम जीरो से लिख देंगे तो कैरी ओवर 308. ओके, एंड देन 20 पैसा है तो पैसा के नीचे हमने 20 लिख दिया. ओके, then sign of addition. Now we have rupees 218 and we have paisa 50, so we'll write paisa here under paisa column. ठीक है, understand it carefully. What we have to do, we have to make two columns क्योंकि हमारे पास जो मनी है वो रुपीस और पैसा दोनों में है. ठीक है, तो हमने रुपीस के कॉलम के नीचे रुपीस की अमाउंट लिखनी है और पैसा के कॉलम के नीचे पैसा की अमाउंट लिखनी है. ठीक है, आपको पता है पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या है, पैसा. तो पैसा के नीचे हमने पैसा लिखने हैं और रुपीस के नीचे हमने रुपीस लिखने हैं. ओके, देन इजी, यू हैव टू ऐड, इनको सेपरेटली हमने ऐड करना है. ओके, 0 + 0 सबसे पहले पैसा वाले कॉलम को ऐड करेंगे. ओके, विल ऐड कॉलम ऑफ पैसा फर्स्ट. 0 + 0 0, 5 + 2. अब आपको एडिशन आती है ना. 5 + 2 विल ओपन 2 फिंगर्स, 5 in the mind, 6 7. ओके, देन 8 in mind and will open 8 finger. ओके, 8 + 8 16. आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो. 8 फिंगर्स ओपन करोगे, लोअर डिजिट को माइंड में रख लो. ठीक है, ये 16. देन 1 will be carried over. 1 + 1 2, 3 + 2 5. Now after that one step is there that you have to write the answer. Answer you will write symbol of rupees 526. 70 पैसा है तो पॉइंट के बाद 7. ठीक है, ऐसे आपने प्रॉपर आंसर लिखना है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं. ओके, अगर आप सिंपल यहाँ तक सॉल्व करोगे, आंसर नहीं लिखोगे, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. ओके, सो keep it in your mind, whenever you solve addition, subtraction, sums or any sum, you have to write answer at last. Okay, after solving it you have to write answer rupees 526 and 70 paisa. Okay, चलिए note down this and for you I am writing second question. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए. जिनका फर्स्ट हो गया है उनके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ, लेकिन जब पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से नोट करना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज रुपीस 475.308 20. ठीक है जी. नाउ ट्राई इट, इसको खुद सॉल्व करके देखिए. बाद में मैं सॉल्व करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम, बस आप जस्ट ट्राई कीजिए. ओके, वेरी गुड. यस आर्था, यू हैव रेज्ड योर हैंड. आर्था, unmute yourself. Adhya, very good. Adhya, unmute yourself. And switch on your camera. हाँ जी मैम. हाँ जी बेटा. You have any query? Yes ma'am. Many students have that means they have understood the concept and they are trying to solve it. Very nice. So what you have to do, first of all आपको rupees and पैसा का column बनाना है ना. You have to make the columns of rupees and paisa and you have to write
रुपीज अंडर रुपीज कॉलम एंड पैसा अंडर पैसा कॉलम, ठीक है। सी रुपीज कॉलम एंड दिस इज पैसा कॉलम। अब आपको पता है रुपीज कौन से होते हैं, जिनके आगे रुपीज का सिंबल लगा है, ठीक है। पॉइंट से पहले जो है, ठीक है, 475 जो है वो रुपीज है, तो वी विल राइट 475 अंडर रुपीज कॉलम, ओके। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 308 के आगे भी रुपीज है ना, दैट मीन्स 308 इज ऑल्सो रुपीज। देन पैसा कॉलम, पैसे कॉलम में सबसे पहले 50 है, देन नेक्स्ट नंबर में 20 है पैसा। नाउ वी विल ऐड करना तो बहुत इजी है, आप बहुत आराम से ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है। हाँ जी, तो 0 plus 0 0, 5 plus 2 7, 5 plus 8 in mind, open 5 fingers, 9 10 11 12 13, so 3 आपने 0 लिखनी है यहाँ पे कैरी ओवर के लिए, 1 7 plus 1 8, 4 plus 3 7, so the answer is rupees 783 rupees and 70 paisa, ओके। अभी अगर किसी को कोई डाउट है इन सम्स में, अगर अभी डाउट है किसी को, दिलप्रीत क्या हो गया बेटा? यू आर लुकिंग वेरी कंफ्यूज्ड, हैव यू डन? ओके, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, शाबाश, बोर्ड विजिबल है आपको? ओके, देन डू इट। व्हाट हैपेंड? आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। हाँ जी प्रभुन। मैम हाँ जी, आप मुझे ये वाला सम समझा दोगे थोड़ा सा? कौन सा वाला? मुझे क्लियर नहीं है। सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड में यस मैम। पैसा का कॉलम बनाया, ठीक है। फिर रुपीस के नीचे रुपीस की अमाउंट लिखी, 475 है फर्स्ट में और सेकंड नंबर में 308 है ना। तो ये हमारे पास 475 रुपीस इधर लिख दिए, 308 में इसके नीचे लिख दिए। पैसे के नीचे हमने पैसे की अमाउंट लिख दी, 50 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, ये हमने लिख दिए। फिर हमने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। ओके मैम। ओके, नाउ एनी अदर डाउट? किसी को अभी कुछ ना समझ आया हो? ठीक है, तो सिंपल इसमें आपने क्या रखना है दिमाग में कि जब भी आपने मनी सम्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं, रुपीस एंड पैसा, ठीक है। रुपीस के नीचे आपने रुपीस की अमाउंट लिखनी है और पैसा के नीचे आपने पैसा की अमाउंट लिखनी है। क्लियर? यस गौरव। प्रभुन, अगर आपका डाउट क्लियर है तो अपना हैंड डाउन कीजिए, डाउन योर हैंड। हाँ जी गौरव। मैम यस, मेरे को सेकंड वाला सम? यस बेटा सेकंड वाला सम भी सेम है जैसे हमने फर्स्ट किया है। रुपीस और पैसा के 2 कॉलम बना दिए हमने। रुपीस 475 रुपीस कॉलम के नीचे लिखा, ठीक है, और 308 हमने रुपीस के नीचे लिखा क्योंकि ये रुपीस लगा इनके साथ, ठीक है, रुपीस का सिंबल लगा है। पॉइंट के बाद पैसा होता है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 50 है तो पैसा के कॉलम के नीचे हमने 50 लिख दिया, और 20 है यहाँ पे तो यहाँ पे 20 लिख दिया। फिर हमने इनको ऐड कर दिया, ठीक है, और आंसर में हमने पॉइंट के बाद 70 लगा दिया। ओके, क्लियर? यस ओके, lower down your hand. ओके मैम। सिमरप्रीत कौर। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी सभी नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम थर्ड Yes. हाँ जी बेटा, टेबल ऑफ 13। यस मैम। टेबल ऑफ 13 It was 27. 13 1
13, 13 twos are 26, 13 threes are 39, 13 fours are 52, 13 fives are 65, 13 sixes are 78, 13 sevens are 90, 91, 13 eights are 100, 104, 13 nines are 117, 13 tens are 120. Very good. Mute yourself. Very good. Hanji. So I hope you all have done these two sums. Let's move to the third sum. Okay? And our last sum. Okay जी? चलिए थर्ड सम करते हैं. ये भी पहले आप ही सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी. ओके? So third sum is we have to add 275 rupees and 40 paisa and rupees 295 and 20 paisa. Okay? Now make the columns and solve it. Very good. And write your answer in the chat box. Please. Let me see who are doing. Switch on your cameras. Anji Manmeet, have you done? Second pink, Manmeet, are you doing? Show me your thumb if you are doing. Okay, good. Very good. Dilpreet, very good. Harshit, your video is not visible yet. Have you switched on your camera? Haneen. Haneen, do you have any doubt? Hanji beta. Ask, unmute yourself. मैम मुझे ना है ना सेकंड पॉइंट वाला सम एक बारी फिर रिपीट करवा दो. सेकंड पॉइंट वाला मैंने बेटा 3 टाइम करवा दिया. एक बार दोबारा रिपीट करवा देती हूँ. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ रुपीस के नीचे रुपीस की अमाउंट लिखी. 475 है रुपीस यहाँ पे, ठीक है. हमने रुपीस के नीचे 475 लिख दिया. फिर 308 रुपीस है सेकंड नंबर पे, तो उसको हमने यहाँ रुपीस के नीचे लिख दिया. पैसा पॉइंट के Okay, ma'am. Thank you. Now do the third one. So in third question again मैं explain कर रही हूँ, ठीक है. सबसे पहले हमने रुपीस के नीचे रुपीस की अमाउंट लिखी. वी हैव रुपीस 275 को हमने रुपीस के नीचे लिख दिया. फिर हमारे पास है 295, उसको हमने रुपीस के कॉलम के नीचे लिख दिया 95. फिर पैसा हमारे पास 40 एंड 20 हमारे पास सेकंड नंबर पे है और हमने उनको ऐड कर दिया. 4 + 2 6, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 will be carried over, 9 + 7 16 + 1 17, 1 will be carried over, 2 + 2 4 + 1 5. ओके. अब आपने जो आपको वर्कशीट आएगी होमवर्क के लिए, उसमें आपने खुद सॉल्व करने हैं सब, ठीक है. आपने अपने पेरेंट्स को बोलना है कि सिर्फ फोन में से हमें स्टेटमेंट लिख दो, उसके बाद आपने खुद सॉल्व करने हैं. फिर जहां पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो आप कल क्लास में मेरे से पूछोगे,
ठीक है, आपने पेरेंट्स से नहीं पूछना है, जहां पे आपको जिस सम में जहां प्रॉब्लम आ गई वहां पे उसको छोड़ देना है। कल क्लास में पूछना है आप कि मैम मैं ये सम सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ गई। ठीक है जी, ओके। सो हाँ जी, नवराज, हाँ जी नवराज, टेबल ऑफ 13। 13 1 जा 13, 13 2 जा